Hello, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics A-Levels. As you know that we are studying chapter of force, density, and pressure, and the specific topic that we were attempting was moment. Right now, what is moment? Moment is product of force and perpendicular distance between line of action of force and pivot. Right? We also studied principle of moment that sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments when the system is in equilibrium. Now, in the previous class, we did few questions related to principle of moments. In this class, we will do some more questions related to that. So, we have a question in front of us in which a person is standing on a long plank. आपने अक्सर देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्कैफोल्डिंग्स होती है और उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर एक प्लैंक को सपोर्ट किया होता है बिकॉज इट कैन विथस्टैंड द वेट ऑफ द पर्सन्स द वर्कर्स वर्किंग देयर, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी भी होता है तो वो शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी एक्ट करता है. सो सिमिलर वे में यहाँ पर एक पर्सन जो कि एक पेंटर लग रहा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक, ठीक है. दिस प्लैंक इज बीइंग सपोर्टेड बाय टू सपोर्ट्स, सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी, ठीक है. बोथ ऑफ दीज सपोर्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पिवट्स, ठीक है. सो द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म प्लैंक, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि the center of gravity is right in the middle, ठीक है. This is center of gravity. The length of uniform plank is 2.8 meters. इसका मतलब ये है 2.8 का half is 1.4 meters. So the force which is weight is acting at 1.4 meters from either sides, ठीक है. 1.4 meters from either side. At this point, its weight will act vertically downwards. So, weight of the plank is acting at this point, and the weight of plank is 400 newtons. Weight of person is 700 newtons. तो यहाँ पर जो force act कर रही है, that is 400 newtons, and the weight of person is 700 newtons. ठीक है? Person's weight is acting at distance of 1 meter from the edge B. ठीक है. अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पर समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं कि किस पॉइंट को पिवट कंसिडर करना है, ठीक है. यू हैव टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है. सो दिस रिएक्शन फोर्स, लेट्स कॉल दिस रिएक्शन फोर्स आर ए एंड दिस वन आर बी, ठीक है. अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में how many downward forces are here? There are only two downward forces, the weight of the plank and the weight of the person, ठीक है. अच्छा, additionally यहाँ पर कितनी upward forces हैं? Force RA and force RB, right? So ideally sum of downward forces must be equal to sum of upward forces because this system is at rest, this is in equilibrium. तो हमें at least ये तो पता है कि total upward forces RA plus RB and total downward forces weight of 400 newtons and 700 newtons, जिसको ऐड करने से आपके पास 1100 newtons आएगा, right? So total downward force is 1100 newton. So total upward force is also 1100 newton. So we know that sum of reaction force RA and RB is 1100 newtons. इतनी बात पता चल गई. अब इट्स टाइम टू डिसाइड पिवट. देखें पिवट को कैसे डिसाइड करना है. लेट्स सपोज अगर आप प्लैंक को राइट साइड से लिफ्ट करते हैं तो वो किस पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा, ठीक है. अगर आप इसको लिफ्ट करेंगे इट विल टर्न अबाउट ए, ठीक है. सो पॉइंट ए कैन बी कंसिडर्ड एज पिवट. लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट साइड से लिफ्ट करते हैं तो ये किस पॉइंट के अबाउट टर्न करेगा, इट विल टर्न अबाउट पॉइंट बी, ठीक है. So either of the supports can be considered as pivot. लेकिन पूरे क्वेश्चन में फिर एक ही पिवट रहेगी. So I am considering that point A is acting as pivot, ठीक है. Point A is acting as pivot. So if you consider this point A as a pivot, how many forces are acting? There are 3 forces, in fact 4 forces acting. 2 weights which are acting vertically downwards and 2 normal reaction forces which are acting vertically upwards. Now, point A को pivot consider करना है तो आप RA का moment नहीं कर सकते. Why? Because the reaction force RA
अगर आप इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को देखें, इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू पिवट। तो जिस भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट से पास करती है उसका मोमेंट जीरो होता है, राइट। सो अबाउट पॉइंट ए बोथ वेट्स आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो मोमेंट किस साइड पर प्रोड्यूस होगा? 400 न्यूटन की वजह से मोमेंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 700 न्यूटन की वजह से इट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आर बी विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इन एट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो ये दोनों मोमेंट्स जो हैं ये क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, ठीक है, और आर बी की वजह से जो मोमेंट है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। नाउ because the system is in equilibrium, sum of clockwise movements are equal to sum of anti-clockwise movements. So I will write sum of clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. कितने क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं? दो, एक 400 न्यूटन फोर्स की वजह से और एक 700 न्यूटन फोर्स की वजह से। ठीक है, याद रखना इन दोनों का डिस्टेंस आपको पिवट से कंसिडर करना है। सो 400 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इज 1.4 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इज 2.8 माइनस 1। जरा देखिए, यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस, पिवट से लेके पर्सन तक का डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ ऑफ प्लैंक कितनी है? 2.8। एक साइड की लेंथ 1 मीटर है तो दूसरी साइड की लेंथ होगी 1.8 मीटर्स। सो डिस्टेंस इज 1.8 meters is equal to RB, the normal reaction force acting at support B, multiplied by the total distance, the total length of plank, which is 2.8 meters. Right? Now, the only variable is this, RB. So let's solve it for RB. So this will be 400 multiplied by 1.4 plus 700 multiplied by 1.8 divided by 2.8. So value of RB is coming out to be 650. Exact value आ रही है 650 newtons. So what will be the value of reaction force at point A? A पे जो reaction force है वो कितनी होगी? हमें ये तो पता है ना, the sum of total reaction force is equal to 1100. तो you can write that RA plus RB is equal to 1100. आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है RB की, तो RB की जगह आप लिखेंगे 650. So RA plus 650 is equal to 1100. ठीक है, यहां से आप RA की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। RA की वैल्यू आ रही है 450. RA is coming out to be 450 newtons. So in this way you have the value of reaction force RB and reaction force acting at point RA. ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब एग्जाम कर रहे होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पॉइंट को पिवट कंसिडर करना है। हमने इनिशियली पॉइंट ए को पिवट कंसिडर किया, अब हम देखेंगे कि अगर हमने पॉइंट बी को पिवट कंसिडर किया होता तब भी हमारे सेम आंसर्स आते या थोड़े से डिफरेंट आंसर्स आने थे। जरा देखते हैं। सो नाउ this is the same diagram, but this time we are considering this support as a pivot. So now this B is pivot. Forces उसी तरह से एक्ट कर रही हैं। यहां पर जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है that is reaction force RB. यहां पे जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट A पे that is reaction force RA. Right? The weight of the person is acting vertically downward and its value is 700 Newton, and the weight of plank is acting right at the center of gravity at its value is 400 Newtons. ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं this is 400 and this is 700. अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ प्लैंक इज 2.8. ठीक है, तो उसको आपने माइंड में रखना है। अगर टोटल लेंथ ऑफ प्लैंक 2.8 है तो पिवट बी का सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस विल बी half of 2.8, which is 1.4 meters. So this distance is 1.4 meters. Right? अब
आप पॉइंट बी के अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करेंगे तो अब जो वेट होगा अबाउट पॉइंट बी, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं ना, तो अबाउट बी बताइए प्लैंक किस साइड पर टर्न हो रहा है, इस साइड पर टर्न हो रहा है। इसका मतलब है वेट्स आर प्रोड्यूसिंग विच मोमेंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट? वेट इज प्रोड्यूसिंग नाउ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है। और अबाउट बी, अगर आप आर ए की डायरेक्शन को देखें, आर ए ऊपर को एक्ट कर रही है, अबाउट बी इट विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आर ए की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। Why we will not consider moment due to force RB, the reaction force RB? Yes, because its line of action of force is passing through pivot. तो जब भी line of action of force pivot से pass करती है उसका moment zero होता है, ठीक है। So we are considering three moments, one due to this weight, one due to this weight, and one due to force RA. So once again you will write clockwise moment is equal to anti-clockwise moment, right? Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. So clockwise moment is due to RA और RA की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है and distance from pivot which is point B is the complete length of plank which is 2.8 meters is equal to anti-clockwise moment. 700 न्यूटन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर और 400 न्यूटन के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है दैट इज 1.4। कीप इन माइंड कि प्रीवियसली आपके पास आर ए की वैल्यू क्या आई थी, आर ए वॉज 450 न्यूटन, ठीक है। अब दोबारा से आप इस नई इक्वेशन से आर ए फाइंड आउट करें। सो दिस इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 400 multiplied by 1.4 divided by 2.8, and this is once again exactly equal to 450 newtons. RA is 450 newtons, ठीक है। तो आपके पास RA की वैल्यू आई 450. Previously you know that sum of these total upward forces RA plus RB is equal to total downward force which is 400 plus 700 that is 1100. यहाँ पर आप आर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 450 प्लस आर बी इज इक्वल टू 1100. यहां से भी आर बी की वैल्यू आएगी 650 न्यूटन, ठीक है। आर बी की वैल्यू आएगी 650 न्यूटन। तो अब ये चीज प्रूव हो गई है कि अगर आप पॉइंट ए को पिवट कंसिडर करें या आप पॉइंट बी को पिवट कंसिडर करें, इन बोथ केसेस आपका आंसर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस सेम आएगा. सो आई एम गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन कंसिडर आइदर ऑफ द पॉइंट एज पिवट, आपका आंसर इफेक्ट नहीं होगा. यू विल गेट सेम आंसर्स. हाँ, डिस्टेंस आपने बड़े केयरफुली सिलेक्ट करने. यू हैव टू कंसिडर डिस्टेंस between pivot and the point at which the force is acting, and that distance must be perpendicular, right? So we'll apply this concept on one more question related to moments, and here you have a new question in which you can see there is a wall, ठीक है, और उस wall के साथ आपने एक mass को support किया हुआ है, and this has a weight of 15 newtons. It has weight of 15 newtons. ठीक है. The weight of uniform rod. Once again, rod is uniform. It means that its weight will act right at its center of gravity. Right? The length of uniform rod is 1 meter. इसका मतलब है weight किस point पर act करेगा? Center of gravity is at the 50 centimeter mark from either sides. ठीक है. तो weight इस point पर act करेगा. इस plank का weight यहां पर act करेगा. This is an arrow for the weight of plank, right? Length of uniform rod is 1 meter, so you have to determine tension in the string. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास given angles कौन से हैं? This is 50 degrees, one of the angle is 90 degrees. ठीक है. तो ये वाला angle कितना होगा? This will be 40 degrees because sum of all three angles of triangle is 180 degree. ठीक है. This is the weight of the plank and this is the weight of the mass which is hung at the end. अच्छा, अब
इस केस में मैं फोर्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वेट ऑफ द प्लैंक एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वेट ऑफ 15 न्यूटन. ठीक है, तो आई हैव दिस पिवट. In this case, I will find the shortest distance between pivot and line of action of force. And for the case of this weight of the plank, that shortest distance is from pivot to this line of action of force. That shortest distance is distance D. ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को रीड्रॉ कर रहा हूं. ये जो आपके सामने ट्राइंगल बना है, मैं इस ट्राइंगल को रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पर. दिस इज द ट्राइंगल दैट वी हैव फॉर्म्ड. ठीक है, इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 50 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्रीज होगा. मैं साथ साथ यहां पर लिखता जा रहा हूं, दिस एंगल इज 50 डिग्रीज, दिस एंगल मस्ट बी 40 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. राइट, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक what is the length of this rod? This is half of its total length. The total length of rod is 1 meter. तो यहां तक जो length बन रही है that is 0.5 meters and this is distance D. ये वाला distance D है. So let's find out this distance D. अच्छा, आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं. मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ sin 50 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज डिस्टेंस D डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 0.5. ठीक है, डिस्टेंस D फाइंड आउट करते हैं. D इज इक्वल टू 0.5 sin 50. 0.5 sin 50 is 0.383. 0.383 मीटर्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस फोर्स, इस वेट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आई एम गोइंग फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट. मैं यहाँ पर फोर्सेस को भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा. आप फोर्सेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. सो यू हैव दिस डिस्टेंस. तो याद रखना अबाउट दिस पिवट, जब मैं वेट का मोमेंट फाइंड आउट करूंगा तो मैं वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D करूंगा. सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट ऑफ दिस ट्राइंगल डिस्टेंस D. ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है, आई एम कॉलिंग दैट डिस्टेंस X. यहां से लेके यहां तक आई एम कॉलिंग दिस डिस्टेंस X. फॉर दिस ट्राइंगल, this is a larger triangle, right? Okay, this is distance X. This angle is once again 50. This angle is 40 degrees and this angle is 90 degrees and this is complete length of the rod which is 1 meter. ठीक है, distance X find out करने के लिए once again I'll write sin 50 is equal to opposite which is distance X divided by hypotenuse. यहाँ से X की वैल्यू आ रही है 1 sin 50. So 1 sin 50 is 0.766 meters. ठीक है, अब मुझे टेंशन की डायरेक्शन डिटरमिन करनी है. तो जो रॉड है दैट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T. राइट, अच्छा, क्या अब मुझे टेंशन को रिजॉल्व करने की जरूरत है? नो, नॉट एट ऑल. व्हाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट द एंगल बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड दिस फोर्स इज 90 डिग्री. ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं. राइट, सो हियर आई अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. वेट की वजह से मोमेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है? दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, और टेंशन की वजह से दिस इज टर्निंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. सो यू विल राइट क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू anti-clockwise moment. Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. This time हमने forces को resolve नहीं किया, rather we found out the shortest distance between line of action of force and pivot. और जो shortest distance होता है वो हमेशा perpendicular distance होता है. So for the force of weight of the plank was 20 newtons.
So 20 का corresponding distance कौन था? 20 के corresponding distance was distance d. 20 multiplied by distance d, which is 0.383 plus 15 के corresponding distance was 0.766 is equal to anti-clockwise moment, which is force tension multiplied by distance, that is length of the plank of 1 meter. ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, टेंशन को रिजॉल्व नहीं किया बिकॉज इस डिस्टेंस फ्रॉम पिवट और इस फोर्स के दरमियान एंगल वाज ऑलरेडी 90 डिग्रीज. नाउ द ओनली वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन इज this t. So let's solve it for t. So 20 multiplied by 0.383 plus 15 multiplied by 0.766 divided by 1. The tension is coming out to be 19.15 newtons. Tension is 19.15 newtons. Right? So आप फोर्सेस को रिजॉल्व करके उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हैं. अगर आपने फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करना, यू कैन स्टिक विद द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट. मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट. तो हमने क्या किया, हमने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड आउट किए जो कि मुझे इस क्वेश्चन में कंपैरेटिवली आसान लगे थे. ठीक है, सो यू कैन यूज आइदर ऑफ टेक्निक्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन. In your free time, you will find out the value of tension by resolving the forces. आप इस force के component find out कर लीजिएगा ना, like this and this component. और कौन सा component जो है that will contribute in moment? The one which is perpendicular to the distance. Right? In this way, you can attempt different questions of moment. So in the next class, we will do a very important concept of couple of forces and torque. So stay tuned for the next class. Thank you.